اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ یونس ابن مرقس یونانی نے خالد رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا تھا۔ اس کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک جشن یا تقریب منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد رضی اللہ عنہ اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے متعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے بلکہ ان میں سے 2-4 توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگا لیا تھا، مگر صرف جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی۔ اس نے کہا، میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کے قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ ہم لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ ایک مشیر نے کہا، اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ توما نے کہا، بغاوت کریں یا نہ کریں، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ ایک یہودی مشیر نے کہا، خالد ابن ولید بڑا جابر سالار ہے، وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کو جو نقصان ہو چکا ہے وہ بھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا اسلام قبول کرو۔ توما نے کہا، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہودی مشیر نے کہا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ توما گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے پوچھا، ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ یہودی نے کہا، ابو عبیدہ بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے، مگر رحم دل ہے۔ توما نے کہا، اپنی فوج میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دوسرے یہودی نے کہا، ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے۔ ان کی خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن ولید کی نہیں۔ ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصراً اس طرح تھا کہ توما ابو عبیدہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے اس کی فوج اور شہر کے ہر اس باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے اسے اس کے مال و اسباب اور عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے۔ شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ توما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کر دے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ شہر کے اس دروازے باب ہابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے جو اس دروازے باب الشرق کے بالمقابل تھا۔ دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ توما آسانی سے اپنے ایلچی ابو عبیدہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی جس رات یونس ابن مرقس خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ، قعقاع رضی اللہ عنہ اور ایک بڑے بہادر مجاہد مزور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب الشرق سے کچھ دور کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسے تھے۔ دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نڈر اور ذہین مجاہدین تھے۔ یونس ابن مرقس خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ بتائی تھی۔ وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ وہ سپاہ سالار تھے، انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا۔ پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بددلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی، دیوار
दीवार की बुलंदी 13-14 गज थी। कमंद दीवार के ऊपर अटक गई। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया। दीवार पर कोई हरकत न हुई, जिसका मतलब ये था कि ऊपर कोई नहीं। अगर कोई था भी तो उसे पता नहीं चला था कि दीवार पर कमंद फेंकी गई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को मजीद खतरे में यूं डाला कि सबसे पहले खुद कमंद के जरिए ऊपर गए। उनके पीछे काका रज़ियल्लाहु अन्हु और मजूर ऊपर गए। ऊपर कोई भी नहीं था। दीवार का यह हिस्सा शहर से कुछ दूर था। शहर की आवाजों से पता चलता था कि लोग जाग रहे हैं और किसी तकरीब में मसरूफ हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को यकीन आ गया कि यूनुस इब्न मुरक्कस उन्हें धोखा नहीं दे रहा। उन्होंने दीवार यानी शहर की फसील के साथ 2-3 रस्से बांधकर नीचे लटका दिए, जो वो इसी मकसद के लिए साथ ले गए थे। उनके 100 मुजाहिदीन में से 50 उन रस्सों से ऊपर चले गए। यूनुस इब्न मुरक्कस भी उनके साथ था। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का गाइड था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन जाबाजों में से कुछ को इस काम के लिए दीवार पर बिठा दिया कि रूमी फौज के आदमी अगर ऊपर आ जाएं तो उन्हें खत्म कर दें, लेकिन खामोशी से, ताकि शहर में किसी को कुछ न पता चले। हर काम खामोशी से करना था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने काका और मजूर को अपने साथ रखा और 50 जांबाजों में से बाकी को अपने साथ फसील से उतार कर ले गए। जो ही वो दीवार से उतरे, उन्हें किसी की बातें सुनाई दी। यूनुस इब्न मुरक्कस ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में सरगोशी की। रूमी सिपाही। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यूनुस इब्न मुरक्कस से कहा, मैं इनकी जबान समझता हूँ, इन्हें इनकी जबान में रोब से कहो कि जल्दी चलो। फिर अपने जांबाजों से कहा, तलवारें निकाल लो और इतनी तेजी से वार करने हैं कि रूमियों को मुंह से कोई आवाज निकालने की मोहलत न मिले। यूनुस इब्न मुरक्कस ने फौजी अफसरों की तरह बड़े रोब से रूमी सिपाहियों को बुलाया। उनके आने तक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जांबाज घेरे की तरतीब में हो गए। रूमी सिपाही कमोबेश 40 थे। वो दौड़े आए। रात का वक्त था। चांद आधी रात के लगभग उफक से उठता था। जब रूमी सिपाही आ रहे थे, उस वक्त चांद शहर की फसील से ऊपर आ गया था। रूमी सिपाही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जांबाजों को अपने आदमी समझे होंगे। वो करीब आए तो मुसलमान जांबाज उन पर टूट पड़े। उनमें से 7-8 ने तलवारें निकाल ली और मुकाबले की कोशिश की, लेकिन मारे गए, मगर खामोशी टूट गई। 2-3 रूमी सिपाहियों ने जख्मी होते ही बड़ी ऊंची आवाजों में शोर बपा किया कि मुसलमान कले में दाखिल हो गए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अब दरवाजा फौरन खुलना चाहिए। रूमी फौज को आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरे पीछे आओ। जहां दरवाजा था वहां ड्योड़ी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जांबाजों से आगे थे। वो दौड़ते हुए दरवाजे वाली ड्योड़ी में गए। वहां सिर्फ 2 सिपाही थे जिनके हाथों में बर्छियां थी। वो शोर सुन चुके थे, इसलिए मुकाबले के लिए तैयार थे। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मुकाबले की ज्यादा मोहलत न दी। एक को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने और दूसरे को काका रज़ियल्लाहु अन्हु ने मार डाला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, दरवाजा खोलो और ज्यादा आदमी बाहर तैयार रहो, रूमी आ रहे हैं। दरवाजे के अंदर की तरफ बड़े वजनी ताले लगे हुए थे और बड़ी जंजीरें बांधकर दरवाजे को मुस्तहकम किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से ताले तोड़े गए और जंजीरें भी उतार ली गईं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजा खोलकर बाहर निकले। उनके बाकी 50 जांबाज बाहर खड़े थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा कि वो दरवाजे के बाहर फैलकर मुकाबले के लिए तैयार रहें। रूमी फौज आ रही है। उसके साथ ही उस दरवाजे के सामने जो दस्ते थे, उन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तैयारी का हुक्म दे आए थे और ये हुक्म भी कि दरवाजा खुलते ही तूफान की तरह दरवाजे में दाखिल हो जाएं। दरवाजा खुलते ही ये दस्ते तूफान की तरह दरवाजे में दाखिल होने लगे। चांद अब और ऊपर आ गया था। अपने पराये की पहचान में सहूलत पैदा हो गई थी। उधर से रूमी फौज का एक दस्ता बाबु शर्क की तरफ आ रहा था। ये मुसलमानों की तूफानी लपेट में आ गया। जरा सी देर में ये दस्ता लाशों में तब्दील हो गया। दमिश्क की तमाम तर रूमी फौज फसील की तरफ दौड़ी और जिन दस्तों को जिन दरवाजों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो तकसीम होकर उन दरवाजों के सामने चले गए। सारे शहर में भगदड़ मच गई। शहरी पहले ही डरे हुए थे। वो भाग नहीं सकते थे। दरवाजे बंद थे। वो अपनी कीमती चीजें इधर उधर छुपा रहे थे। औरतों की चीख नुमा आवाजें सुनाई देने लगी। हमारे आदमी बेगैरत हैं। हमारे आदमी हमें मुसलमानों से नहीं बचा सकते। हमारे आदमी बुज़दिल हैं, अपनी जानें बचाते फिरते हैं। औरतों की इस तानाज़नी ने दमिश्क के जवानों को गरमा दिया। वो तलवारें और बर्छियां लेकर निकल आए। इस तरह रूमी फौज को सहारा मिल गया। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते रूमियों पर हावी हो चुके थे। मुसलमान महासरे से तंग आए हुए थे। वो दमिश्क को फतह करने के लिए कहर और गजब से लड़ रहे थे। तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा दानिस्ता तौर पर किया था, या उनके पास इतना वक्त नहीं था कि उन्होंने दूसरे दरवाजों पर जो सालार मुतय्यन किए थे उन्हें न बताया कि आज रात वो क्या करने वाले हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु तक को इत्तला न दी कि वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। किसी भी तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा क्यों किया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से बहुत दूर थे। उन्होंने शहर में शोर सुना
देखा तो कहने लगे कि रूमियों ने किसी दरवाजे से बाहर जाकर उस दरवाजे वाले मुसलमान दस्तों पर हमला किया है। रूमी ऐसे हमले पहले भी कर चुके थे। दूसरे दरवाजों वाले मुसलमान सालार भी गलत फहमी में रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शहर के अंदर इतने उलझ गए थे कि दूसरे सालारों को अंदर न बुला सके। उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि दूसरे सालार दरवाजों के बाहर अपने दस्तों को तैयार रखें ताकि रूमी फौज किसी दरवाजे से भाग न सके। ये भी जहन में रहे कि मुसलमान दस्ते शहर की फसील और दरवाजों से करीब नहीं थे। वो फसील से कम 1-1 मील दूर थे। करीब होकर वो तीरों की जद में आते थे। इतनी दूर से वो शहर के अंदर का शोर अच्छी तरह नहीं सुन सकते थे। तूमा को जब इत्तला मिली कि मुसलमान शहर में दाखिल हो गए हैं तो उसने अपने मुशीरों को बुलाया। तूमा ने पूछा कौन कौन से दरवाजे से मुसलमान अंदर आए हैं। उसे किसी ने कहा सिर्फ एक दरवाजे से, शर्की दरवाजे से, बाकी सब दरवाजे बंद हैं। तूमा ने पूछा क्या किसी ने फसील पर जाकर देखा है, क्या मुसलमानों की बाकी फौज भी करीब आ गई है। उसे जवाब मिला देखा है, उनके बाकी दस्ते जहां पहले थे वहीं हैं। तूमा ने पूछा बाबे हाबिया को देखा है, क्या अबू उबैदा के दस्ते भी आगे नहीं आए। उसे बताया गया कि नहीं, वो दस्ते भी आगे नहीं आए, ये सिर्फ उनके सिपाह सालार खालिद इब्ने वलीद के दस्ते हैं। तूमा के मुशीर और सालार आ गए। तूमा ने उनसे कहा हम शहर को नहीं बचा सकेंगे। मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि मुसलमानों ने दरवाजा किस तरह खोल लिया है। उन्हें अंदर से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। एक मुशीर ने कहा क्या फायदा ये सोचने का कि मुसलमान शहर में किस तरह दाखिल हो गए हैं, वो अंदर आ गए हैं, अब ये सोचना है कि क्या किया जाए। एक और मुशीर ने कहा उसी मंसूबे पर अमल किया जाए जो हमने पहले से सोचा था, अबू उबैदा को सुलह का पैगाम भेजें। इस मसले पर कुछ तबादला ख्यालात होता रहा। आखिर तय पाया कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ एक एलची भेजा जाए। तूमा ने हुक्म दिया और मैंने जो दस्ते महफूज रखे हुए हैं उन्हें उधर भेज दिया जाए जिधर से मुसलमान अंदर आ गए हैं। उन्हें मेरा पैगाम दिया जाए कि दमिश्क शहर की नहीं बल्कि सल्तनत रूम की आबरू और आन उनके हाथ में है। वो जाने कुर्बान कर दें और मुसलमानों के सालार इब्ने वलीद को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आए। हेनरी स्मिथ, अबू सईद वाकिदी और तबरी ने लिखा है कि तूमा ज़हनी तौर पर हथियार डाल चुका था। वो अपने महफूजा के दस्तों को इसलिए शहर की लड़ाई में झोंक रहा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने फरेबकाराना मंसूबे की कामयाबी तक रोका जा सके। उसके यहूदी और ईसाई मुशीर मामूली दिमागों के आदमी नहीं थे। रात गुजरती जा रही थी और शहर के अंदर की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। अब गलियों में लड़ाई हो रही थी। पल्ला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों का भारी था। रूमियों के महफूजा के दस्तों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए मुश्किल पैदा कर दी, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु हिम्मत हारने वाले नहीं थे। उनके आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो गई थी। उधर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज पढ़ चुके थे तो उन्हें बताया गया कि रूमी सिपाह सालार के 2 एलची आए हैं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बुला लिया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एलचियों से कहा क्या तुम्हारे सालार के अभी होश ठिकाने नहीं आए, कहो तुम क्यों आए हो। एक एलची ने कहा सिपाह सालार तूमा का पैगाम लाए हैं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जब तक हथियार नहीं डालोगे मैं सुलह के लिए तैयार नहीं हो सकता। दूसरे एलची ने कहा ए अरब के रहमदिल सालार, हम लड़ाई और खूंरेजी खत्म करने आए हैं। सिपाह सालार तूमा ने हमें पैगाम दिया है कि वो हथियार डालने पर रजामंद है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें शहर से निकल जाने दिया जाए, शहर में लूट मार न हो, किसी को कत्ल न किया जाए। हर शहरी और फौजी अपने साथ अपना जो माल अमवाल ले जा सकता है ले जाने की इजाजत दी जाए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हम नाहक खून बहाने नहीं आए ए रूमियों, खुदा की कसम मैंने अपने उन साथियों का खून तुम्हें माफ नहीं कर सकता जो तुमने बहाया है। एक एलची ने कहा शहंशाह हरकल के दामाद सिपा सालार तूमा ने कहा है कि हम तावान अदा करेंगे। आप उसे शायद जिजिया कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हमारा शहंशाह अल्लाह है। तुमने हरकल को इस तरह शहंशाह कहा है जैसे वो हमारा भी शहंशाह हो और वो हमें खैरात दे रहा हो। एलची ने कहा हरकल हथियार डाल देगा तो भी हम उसे शहंशाह ही कहेंगे। हम उसके नौकर हैं और उसका हुक्म बजा लाते हैं। क्या आप हम पर और दमिश्क की औरतों और बच्चों पर रहम नहीं करेंगे। दूसरे एलची ने कहा ए सालार मदीना, दमिश्क के शहरी तो लड़ाई नहीं चाहते थे। वो तो बहुत पहले से सालार तूमा को कह रहे थे कि मदीना वालों के साथ सुलह कर लो। अगर इस्लाम के मुतालिक जो हमने सुना है वो दुरुस्त है तो आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा खुदा की कसम तुम मेरे सिपाह सालार खालिद बिन वलीद के पास जाते तो वो भी वही कहता जो मैं कहूँगा। हमारे आगे जो झुक जाता है और हमसे जो सुलह की भीख मांगता है उसे हम बख्श देते हैं कि इस्लाम का हुक्म यही है। अगर कोई आखिरी दम तक लड़े और हम बजोरे शमशीर उससे हथियार डलवा लें तो फिर हम उसे रहम के काबिल नहीं समझते। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शहर के मशरकी हिस्से में लड़ रहे थे और वो रूमी फौजियों का और उन शहरी जवानों का जो अपनी फौज के दोष बदोश लड़ रहे थे सफाया करते जा रहे थे। रूमियों की फौज दूसरे दरवाजों के आगे भी चली गई थी। इस तरह ये फौज तकसीम होकर कमजोर हो गई थी। इससे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत फायदा उठाया।
उधर बाबे हाबिया खुल गया और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दस्तों के साथ तूमा के एलचियों की रहनुमाई में शहर में दाखिल हुए। तूमा ने 3 और दरवाजे खोलकर ऐलान करवा दिया कि सुलह हो गई है और रूमी दमिश्क से जा रहे हैं। मुआहिदा हो गया है कि लूट मार नहीं होगी, मुसलमान किसी शहरी को कत्ल नहीं करेंगे और किसी औरत को मुसलमान अपने कब्जे में नहीं लेंगे। गुरूबी आफ्ताब में कुछ वक्त अभी बाकी था जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु शहर में दाखिल हुए थे। खुद तूमा ने आगे बढ़कर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्तकबाल किया। तूमा के साथ उसका एक सालार हरबीस भी था, दमिश्क का बड़ा पादरी भी था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तूमा और हरबीस से कहा, ए रूमियों, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने खुद ही शहर हमारे हवाले कर दिया है। इससे तुमने अपने आप को, अपनी फौज और अपने शहरियों को बहुत बड़ी जिल्लत से बचा लिया है। तुमने अपने माल अमवाल को भी बचा लिया है। लेकिन ये शोर कैसा है? क्या कहीं लड़ाई हो रही है? तूमा ने झूठ बोला, कहा लोग सुलह की खुशी में शोर गुल मचा रहे हैं। वो देखें मेरी फौज दीवार के साथ खड़ी है, सबके हथियार जमीन पर पड़े हैं। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु शहर के उस हिस्से पर गालिब आ चुके थे जिसमें रूमी फौज के 2-3 दस्तों ने उनका मुकाबला किया था। अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बच बच कर आगे बढ़ रहे थे। वो हैरान थे कि शहर की बाकी फौज उनके मुकाबले के लिए क्यों नहीं आ रही। उसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फंदा समझ रहे थे। उसी खतरे के पेश नजर वो मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। बाहर से उनका राब्ता टूट गया था। उन्हें ऐसी तवक्को नहीं थी कि दरवाजे खुल जाएंगे और उनकी बाकी फौज भी अंदर आ जाएगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आप को बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। दमिश्क के वस्ती हिस्से में शहर का बड़ा गिरजा था जो कलीसाए मरियम कहलाता था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को वहां ले जाया जा रहा था। वो गिरजे के करीब पहुंचे ही थे कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मुहाफिजों के साथ उधर आ निकले। उन्होंने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसे पुरअमन अंदाज से तूमा वगैरह के साथ देखा कि उनकी तलवारें न्यामों में थीं, तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हो गए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके मुहाफिजों को देखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में तलवार और ढाल थी। तलवार खून से लाल थी, दस्ते तक खून गया हुआ था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पसीने में नहाए हुए थे और उनके कपड़ों पर खून के बेशुमार छींटे और धब्बे थे। उनका सांस फूला हुआ था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुहाफिजों की भी हालत वैसी ही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। मुहाफिजों के पास बर्छियां थीं जिनकी अन्नियां जैसे खून में से निकाली गई थीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक दूसरे को हैरत ज़दगी के आलम में देखते रहे।